So now we are going to study the parameter which is used to determine the pollution level with respect to the chemical impurities present in the wastewater sample is called as the COD. COD stands for chemical oxygen demand. It is defined as the amount of oxygen consumed under specified conditions in the oxidation of organic and oxidizable inorganic matter, right? तो वो जो इफ्लुएंट सैंपल रहेगा जिसमें केमिकल इम्प्योरिटीज होंगे, इट कैन बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक विच कैन बी ऑक्सीडाइज, तो हमें वो और कितना ऑक्सीडेशन होगा वो केमिकल्स का, दैट वी आर गोइंग टू डिटरमाइन, राइट? जब ये इफ्लुएंट सैंपल अगर सी वाटर में चला जाता है तो उसमें कितने सब्सटेंसेस होंगे जो ऑक्सीडाइज होंगे, right? So that we have to determine. So how it is done? It is done in the laboratory by a titration method. Now, हमें टाइट्रेशन करने के लिए हम क्या करने वाले हैं? जो इफ्लुएंट सैंपल से मुझे सीओडी फाइंड आउट करना है, वो सैंपल इफ्लुएंट सैंपल लिया जाएगा और उसमें वो सारे सब्सटेंसेस ऐड करेंगे जिसके वजह से ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस. फाइन. So what we are going to do in the titration of the chemical oxygen demand, we take a round bottom flask, right? In that we add mercuric sulfate. Now mercuric sulfate is anhydrous mercuric sulfate. It will absorb the impurities or moisture which is present in the solution. So we add mercuric sulfate. Then in this we are going to add the sample. जो इफ्लुएंट सैंपल हमें जिसमें से हमको सीओडी फाइंड आउट करना है, वो अराउंड 50 ml of sample is taken. Now in this, potassium dichromate, which acts as a strong oxidizing agent, is added. Now this potassium dichromate can be around 25 ml we add, depending upon the effluent sample, whether it is more toxic, then it will consume the completely 25 ml. If it is less toxic, it will the dichromate which is not used will be left out. तो यहाँ पे जो हम पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करते हैं, अगर हम ज्यादा भी केमिकल्स नहीं यूज करेंगे तो अराउंड 25 ml हम जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट विच एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज यूज. फिर इसमें एक मिक्सचर डाला जाता है, दैट इज ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड सिल्वर सल्फेट इज एडेड. Now as this reaction takes place in acidic medium, that is why dilute sulfuric acid, that is H2SO4, is required, and we require Ag plus ions from silver sulfate as silver sulfate acts as a catalyst. Fine. So in order to speed up the reaction, we require the catalyst, and all this setup, ये जो हमने सारे केमिकल्स करके जो सोल्यूशन हमने रेडी किया है, इसको हम रिफ्लक्स करते हैं फॉर 1.5 hours. Again I'll repeat how this experiment is carried out. In this experiment, a round bottom flask is taken. In this, a pinch of mercuric sulfate is added. After that, a strong oxidizing agent, that is potassium dichromate, added, and we also add around 50 ml of sample. Then we add a mixture of sulfuric acid, dilute sulfuric acid, and silver sulfate, which acts as a catalyst. Now this mixture which is ready is further refluxed for around 1.5 hours by using water condenser. तो जैसे आपको रोल यहाँ पे सेकेंड नंबर पे दिख रहा है, सेकेंड स्टेप, ये जो सॉल्यूशंस हमने सब जो मिक्स किया है इसको हम रिफ्लक्स करेंगे, हीट करेंगे with the help of water condenser for around 1.5 hours. 1.5 hours होने के बाद
इस फ्लास्क को हम कूल करेंगे, कूल करने के बाद उसको टाइट्रेट करेंगे। फाइन। नाउ यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको पूछना चाहूंगी। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सैंपल ऐड कर रहे हैं, इफ्लुएंट सैंपल, जिसमें केमिकल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगे और इसमें हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर। यहाँ पे जितने भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं will convert into ammonia or carbon dioxide or sulfur dioxide. तो how it is going to get convert, ये जो केमिकल्स है, ये जो हमने डाइक्रोमेट ऐड किया है, ये केमिकल्स ये डाइक्रोमेट से रिएक्ट करें, राइट। वी अज्यूम दैट यहाँ पे जो हमारे केमिकल्स है उसकी क्वांटिटी और हमारे डाइक्रोमेट की क्वांटिटी जो हमने ऐड किया है, तो इसमें हमारा डाइक्रोमेट हमने एक्सेस ऐड किया है, एक्सेस ऐड किया है एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम ऐड करते हैं, जब हम रिफ्लक्स करते हैं, जब रिफ्लक्स करेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन विल टेक प्लेस बिटवीन द एफ्लुएंट सैंपल में जो भी केमिकल्स है, दे विल रिएक्ट विथ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। फिर रिफ्लक्स करने के बाद अब हमने एक्सेस डाइक्रोमेट डाला था और रिएक्शन कंप्लीट हो गया ना। रिएक्शन जब कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे मेरा स्टेज नंबर 2 है, स्टेप नंबर 2 है, यहाँ पे मुझे अभी दो टाइप का डाइक्रोमेट हम कह सकते हैं, दैट इज रिएक्टेड एंड अनरिएक्टेड डाइक्रोमेट। ओके, नाउ रिएक्टेड डाइक्रोमेट इज व्हाट, जो भी impurities present है सैंपल में that has reacted with the dichromates, fine, so that is called as the reacted dichromates. Now हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्सेस ऐड किया, तो थोड़ा पोर्शन जो रहेगा डाइक्रोमेट का जो एक्सेस है, जिनको केमिकल्स नहीं मिला रिएक्ट करने की, राइट। तो स्टेप 3 में आपको दिख रहा है कि हमारे पास जो है अनयूज डाइक्रोमेट है। ओके, नाउ ये जो अनयूज डाइक्रोमेट है ये तो एज इट इज रहेगा, ये सैंपल में हमको तो दिखाई नहीं देगा ना अनयूज कौन सा है और यूज कौन सा है, तो ये एक साथ ही सोल्यूशन दिखेगा। तो अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, अनयूज्ड डाइक्रोमेट कितना बचा है, क्योंकि रिएक्टेड डाइक्रोमेट तो ऑलरेडी रिएक्टेड हो गया है, तो वो और किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। हम यहाँ पे ये स्टेज में ये पता चल सकता है कि अनरिएक्टेड जो अनयूज्ड डाइक्रोमेट है, जहाँ पे यहाँ पे रिएक्शन नहीं हुआ है, वो हम कोई और केमिकल से रिएक्ट करके हमें पता चलेगा कि अनयूज कितना है, राइट। तो मुझे अनयूज या अनरिएक्टेड डाइक्रोमेट मिला है, तो ये जो अनयूज डाइक्रोमेट है वो कितना क्वांटिटी है वो कैसे मिलेगा, उसको हम टाइट्रेट करेंगे विथ फेरस अमोनियम सल्फेट, फास कहते हैं शॉर्ट में, FAS, which is a more salt solution, MOHRS, more salt solution। तो हम फेरस अमोनियम सल्फेट दैट इज FAS, फास से हम टाइट्रेट करते हैं जिसमें Fe आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो जितना मुझे फास कंज्यूम होगा, जो ब्यूरिट रीडिंग फास की मिलेगी, उतना मेरा क्या प्रेजेंट रहेगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रेजेंट रहेगा। अब ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये किस चीज का है, अनयूज, ये जो मुझे रीडिंग मिलेगा ये अनयूज डाइक्रोमेट है, राइट। तो मुझे अनयूज डाइक्रोमेट का ब्यूरिट रीडिंग मिला, राइट। तो सिमिलर वे अब मुझे अनरिएक्टेड का मिला, मुझे फाइंड आउट करना है रिएक्टेड वाला। तो रिएक्टेड इसमें से कितना रिएक्टेड था जो केमिकल्स ने यूज किया वो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए जैसे हमने ये सेटअप किया था उसी तरह से हम क्या करेंगे, सेम सेटअप और एक फ्लास्क के साथ किया जाता है जिसमें हमारा सैंपल नहीं रहेगा। तो जिसमें सैंपल नहीं रहेगा दैट इज कॉल्ड एज द ब्लैंक सैंपल, right? Blank is what, without a sample, but it will have the same procedure, the same setup as we do for the sample, right? तो यहाँ पे जैसे मैंने एक फ्लास्क दिखाया है उसी तरह से दो फ्लास्क रहेंगे। एक फ्लास्क पे हम लिखते हैं ब्लैंक सैंपल
दूसरे फ्लास्क पे लिखेंगे सैंपल। तो अभी हमारे पास कितने रीडिंग्स होंगे? 2 रीडिंग्स होंगे, एक ब्लैंक का रहेगा फ्लास्क और एक सैंपल का रहेगा। अब दोनों में जो मैं ट्रीटमेंट सैंपल के लिए कर रही हूँ सेम ट्रीटमेंट मेरा ब्लैंक के लिए भी रहेगा, एक्सेप्ट ब्लैंक में क्या नहीं रहेगा? सैंपल नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितना मैंने 25 ml डाइक्रोमेट यूज किया है वहां यहाँ पे भी 25 ml डाइक्रोमेट यूज करूंगी। दोनों को मैं रिफ्लक्स करूंगी और दोनों को टाइट्रेट करूंगी। टाइट्रेशन के बाद मुझे ब्यूरिट रीडिंग आएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए कौन से कौन से ब्लैंक या सैंपल दोनों में से किसका रीडिंग ज्यादा रहेगा? ब्लैंक। ब्लैंक का बराबर, वेरी गुड। ब्लैंक सैंपल, क्योंकि इसमें जो डाइक्रोमेट है उसको केमिकल्स हमने प्रोवाइड नहीं किया है, तो जितना मैंने डाइक्रोमेट ऐड किया है ब्लैंक सैंपल में, इन दैट आफ्टर रिफ्लक्सिंग एक थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन वी विल हैव द मोर रीडिंग ऑफ ब्लैंक एज कंपेयर टू द सैंपल। सैंपल की रीडिंग जो होगी कम होगी। तो ब्लैंक मतलब टोटल पोटेशियम डाइक्रोमेट कितना बचेगा आफ्टर रिफ्लक्सिंग, और सैंपल में से हमको क्या पता चलेगा? अनरिएक्टेड कितना बचा है, अनयूज्ड डाइक्रोमेट। तो कैन आई फाइंड आउट द रिएक्टेड वन? Yes, कैन आई ma'am. फाइंड आउट हाउ कैन आई फाइंड द रिएक्टेड? हाउ मच विल बी द रिएक्टेड? Blank minus वेरी गुड, ब्लैंक माइनस सैंपल, राइट। तो ब्लैंक माइनस सैंपल, ब्लैंक की जो ब्यूरेट रीडिंग आएगी ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट के बाद टाइट्रेट करने के बाद, और सैंपल की जो रीडिंग आएगी, जैसे आपने बताया ब्लैंक की रीडिंग ज्यादा रहेगी। सपोज ब्लैंक की रीडिंग मुझे 25 ml आती है और सैंपल की रीडिंग जो मैं टाइट्रेट करने के बाद मुझे 10 ml आती है। ये 10 ml मतलब क्या है? अनरिएक्टेड डाइक्रोम। ओके, और टोटल कितना था? 25 ml मुझे आया। तो मुझे रिएक्टेड क्या मिलेगा? how will I get the reacted dichromate? What is the reading? 25 is the blank, 10 ml is the sampled reading. What I will do? 25 minus 10. Very good. 25 minus 10. 25 माइनस आप 10 करते हो तो कितना रीडिंग आया मुझे? 15 ml. So 15 ml is the reacted dichromate which is used by the impurities which is present in the sample. Clear? So this is how the titration is carried out. Now, when the titration is done, then we do the calculation. Now, again, I'll show you the different colors which are obtained as you can see in the screen. Initially, the solution is orange-red color due to 25 ml of potassium dichromate. तो हम potassium dichromate जब add करते हैं flask में, where the sample is present, so it is around orange-red color. After refluxing, जब हम reflux करते हैं, the oxidation will take place, and because of that, some amount of potassium dichromate is used. It reacts with the chemically oxidizable waste present in the wastewater. तो यहाँ पे एक reaction होता है of the impurities which are present in the effluent water sample, which can be oxidized, which are chemically oxidizable. It reacts with the potassium dichromate. जब ये रिएक्शन होता है तो सॉल्यूशन बिकम्स पेल ऑरेंज, उसका जो डार्क ऑरेंज कलर होता है वो कम हो जाता है। पेल ऑरेंज कलर आफ्टर कंप्लीट रिफ्लक्स होने के बाद, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 25 माइनस x ml ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो रिएक्शन होने के बाद और लाइट हो जाता है और कंप्लीटली रिफ्लक्स होने के बाद और लाइट हो जाता है। Now, लाइट होने के बाद दिस कलर इज जस्ट बिफोर एंट्री, इसको टाइट्रेट करते हैं हम विद फेरस अमोनियम सल्फेट, एंड द इंडिकेटर which is used is ferroin indicator. The ferroin indicator is around brick red color.
तो फेरॉन इंडिकेटर हम ऐड करते हैं और टाइट्रेशन शुरू करते हैं विथ FAS, दैट इज फेरस अमोनियम सल्फेट। नाउ जब फेरस अमोनियम सल्फेट में जब हम टाइट्रेशन करते हैं, ये ब्यूटीफुल टाइट्रेशन है जहाँ पे आपको बहुत सारे शेड्स दिखते हैं, राइट। तो जिसमें हम जब टाइट्रेट करते हैं तो एंड पॉइंट के पहले आपको ये ग्रीन कलर मिलता है। So this color is just before end point after all the dichromate is reacted with FS. जब पूरा डाइक्रोमेट रिएक्ट कर जाता है FS के साथ, तब हमें ये ग्रीन कलर मिलता है। The very next drop of FAS will give reddish brown the color of the indicator. जब कंप्लीट रिएक्शन होने के बाद जब नेक्स्ट ड्रॉप में FAS का यूज करती हूँ तो स्लाइड ब्लू करने के बाद हमको ब्रिक रेड कलर मिल जाता है, which is the end point of the titration. As you can see over here, this is the COD apparatus. Okay. Please mute yourself, students. Okay, so this is the COD apparatus. This is called as the heating mantle. ये जो heating mantle होता है, ये जो ये जो हीटिंग मेंटल होता है, यहाँ पे 3 का सेट मिलता है और 6 का भी सेट मिलता है। मतलब एक साथ आप जो है एक ब्लैंक रखेंगे और बाकी सैंपल रखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, 3 का सेट है, तो 3 का सेट जब रखते हैं, एक को ब्लैंक सैंपल ब्लैंक हम रख सकते हैं, उसके साथ 2 सैंपल्स को भी एक साथ हम रिफ्लेक्स करने के लिए रख सकते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई सैंपल का एक ही रीडिंग अगर हम रिफ्लेक्स करते हैं 1.5 घंटे बाद या 3 घंटे बाद हमें एग्जैक्टली रीडिंग मिलती है, तो इट टेक्स टाइम। अगर वो अगर टाइट्रेशन खराब हो जाता है तो अगर और हमको 3 घंटे के लिए रुकना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो हमारा सैंपल रहता है उसको हम 3-4 सीरीज में बनाते हैं। लाइक एक में 10 ml सैंपल है, एक में 15 ml सैंपल है, एक में 20 ml सैंपल, लेकिन ब्लैंक तो एक ही रहेगा। तो इस तरह से मेरे पास अगर 6 का हमारे पास मेंटल है, तो एक जो मेंटल हीटिंग मेंटल है, एक सॉकेट जो होता है वो ब्लैंक के लिए रखा जाता है। उसके साथ हम सीरीज में जो है 5 सैंपल साथ में लगा सकते हैं, जिसमें अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है सैंपल में, ताकि हमें जो रीडिंग्स मिले वो 2-3 तो एग्जैक्ट रीडिंग्स मिल सकते हैं। बिकॉज दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हमको रिफ्लेक्स करना है 1.5 घंटे के बाद। 1.5 घंटे के बाद कूल करेंगे और उसको टाइट्रेट करेंगे, राइट। so this is how the procedure of COD takes place. Yes, as someone is telling me to repeat again, so I'll repeat this slide again. पहले क्या किया जाता है, जो हम सैंपल लेते हैं वो सैंपल में हम पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करते हैं, which acts as a strong oxidizing agent. That time the color is orange red color. When I get the orange red color, afterwards what is done, refluxing is carried out. हम उसको reflux करेंगे. Refluxing is done for around 1.5 hours. So when we start refluxing, as the reaction takes place of the potassium dichromate, it reacts with the chemically oxidizable waste present in the waste water. तो ये जो impurities है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट होती है, तो ये जो डार्क ऑरेंज कलर होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। और 1.5 hours इसको हीट करने के बाद द कलर becomes more lighter, it becomes pale orange color, right after refluxing. तो उसको हम कूल करेंगे। कूल करने के बाद ये जो फ्लास्क है इसको टाइट्रेट किया जाता है बाय स्टैंडर्ड FAS सॉल्यूशन यूजिंग फेरॉइन इंडिकेटर। तो फेरॉइन इंडिकेटर इसमें ऐड करते हैं और हम FAS के साथ टाइट्रेट करें। जब पूरा डाइक्रोमेट FAS के साथ रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे जो डाइक्रोमेट रिएक्ट करता है वो अनयूज डाइक्रोमेट हुआ है। जो अनयूज डाइक्रोमेट FAS के साथ रिएक्ट कर जाता है तब तक हमें ग्रीन कलर मिल जाता है। ग्रीन कलर के बाद जो नेक्स्ट ड्रॉप हम ऐड करते हैं स्लाइटली ब्लूइश के बाद वी गेट अ ब्रिक रेड कलर, रेडिश ब्राउन कलर।
The reddish brown color obtained is the end point. Refluxing. Now, what do you understand by refluxing? Refluxing is nothing but, देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो है हम सॉल्यूशन लेंगे और ये कंडेंसर में हम हीट करेंगे. अगर मैं ऐसे ही सपोज हम वाटर को बॉईल करते हैं, मैंने 100 ml वाटर रखती हूँ मैं बॉइलिंग के लिए और मुझे 1 घंटे तक उसको हीट करना है. तो जब मैं हीट करती हूँ 1 घंटे के लिए तो मुझे उतनी क्वांटिटी मिलेगी. मैंने 100 ml मैंने बॉईल करने के लिए रखा 1 घंटे के लिए, तो 1 घंटे के बाद मुझे 100 ml मिलेगा क्या? नो मैम. नहीं मिलेगा ना, वो रिड्यूस हो जाएगा. फाइन. तो मैं यहाँ पे कितना ml सैंपल रख रही हूँ? 25 ml डाइक्रोमेट है और 10 ml सैंपल. तो और 1 घंटे के बाद मुझे टाइट्रेशन करना है. तो द क्वांटिटी, द वॉल्यूम जो है 1-1.5 घंटे के बाद उतना रहना चाहिए. राइट. तो कैसे रहेगा बताइए? प्लस और माइनस ठीक है, लेकिन जो मैंने वॉल्यूम रखा है सपोज 100 ml रखा है, तो एटलीस्ट हीटिंग करने के बाद एटलीस्ट मुझे 90 ml तो होना चाहिए, 80 ml तो होना चाहिए. तो कैसे करेंगे हम उसको? वॉल्यूम मेंटेन करना है मुझे, तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे हम लोग? how we can maintain the volume? मतलब हमको उसमें हीटिंग तो करना है ताकि रिएक्शन हो. विदाउट हीटिंग द रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस. तो इसके लिए हमको हीट तो करना है, लेकिन हीटिंग में वी डोंट हैव टू लॉस, हमको जो सोल्यूशन है उसको लूज नहीं करना है. वी रिक्वायर अप्रॉक्स द सेम अमाउंट आफ्टर 1 hour ऑफ हीटिंग. Can anyone tell me how we can get that much amount of volume? Yes. क्या करते हैं, सपोज अगर हम गैस पे कोई वेसल रखते हैं और मैंने 100 ml सैंपल रखा है बॉइलिंग के लिए, 100 ml वाटर रखा है बॉईल करने के लिए, है ना. लेकिन फिर मुझे मुझे आधे घंटे के बाद उतनी क्वांटिटी चाहिए, तो क्या करेंगे हम? उसको कैसे बॉईल करेंगे? मैम जितना चाहिए उस पर थोड़ा ज्यादा डालेंगे. जितना चाहिए उससे ज्यादा डालेंगे. और मुझे आधे घंटे तक हीट करना है. मेरा क्या कहना है कि जितना हम सपोज 100 ml डाल रही हूँ मैं, उसको हाफ एन आवर में हीट कर रही हूँ, तो आई वांट दैट इट शुड बॉईल फास्टर आल्सो एंड इट शुड नॉट, द क्वांटिटी शुड नॉट डिक्रीज मच मोर. तो क्या करते हैं हम बॉइलिंग के टाइम? कवर कर दीजिए. हम कवर करेंगे ना उसको. अगर हम कवर करते हैं, लीड से कवर करते हैं, तो बॉइलिंग भी फास्ट हो जाएगा और उसका वॉल्यूम भी रिड्यूस नहीं होगा. क्यों वॉल्यूम रिड्यूस नहीं होगा? एवापोरेट नहीं होएगा. इवेपोरेट नहीं होगा. तो इवेपोरेट क्या नहीं हो रहा है? वाटर इवेपोरेट नहीं हो रहा है. इवेपोरेट नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? वो वाटर क्या हो रहा है? वो वाटर कंडेंस हो रहा है ना. वो वाटर जो है कंडेंस हो रहा है, मतलब वही वाटर इवेपोरेट, हम बॉईल करने की वजह से वाटर बॉईल हो रहा है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है. अगर ये वेपर्स को हम ऐसे ओपन छोड़ देते हैं तो वेपर्स इवेपोरेट हो जा रहा है. इसकी वजह से वॉल्यूम जो है मेरा पानी का वो डिक्रीज हो जा रहा है. लेकिन अगर मुझे उतना ही वॉल्यूम चाहिए तो मैं इसको कवर करती हूँ विद लिड. तो लिड के कवर करने से वजह से ये वेपर्स जो है वो कंडेंस हो जाते हैं, है ना. कंडेंस होने के बाद द क्वांटिटी जो अवेलेबल रहेगी, लॉस जो हो रहा है बिकॉज ऑफ द बॉइलिंग विल नॉट टेक प्लेस. ठीक है. तो सिमिलरली व्हाट हैपेंस ओवर हियर, ये जो वाटर कंडेंसर है, जैसे मैंने जब लैब का मैंने इंट्रोडक्शन दिखाया था, सारा अपैरेटस दिखाया, तो ये कंडेंसर भी बताया था. ये इनलेट होता है. ठीक है. ये इनलेट जो होगा, इट इज अटैच्ड टू अ रबर पाइप and this rubber pipes goes in to the tap. now suppose यहाँ पे assume करो ये टैप है, टैप से जो है वाटर अंदर आएगा यहाँ से, ये इनलेट है. और ये इनलेट यहाँ पे ट्यूब रहती है जहाँ से वाटर है जो वो अंदर चला जाएगा, ये ट्यूब से ऊपर जाएगा एंड इट कम्स टू द सेकेंड वन. तो सेकेंड वन से ये वाटर वापस थर्ड वन से जाएगा. ये थर्ड वन से जो लास्ट होता है कंडेंसर,
ये जो आउटपुट है, ऊपर का जो नॉब है, यहाँ पे रबर ट्यूब अटैच करते हैं और ये रबर ट्यूब को कहाँ पे जाएगा, इसका एंड जाएगा सिंक में। नाउ यहाँ से इनलेट है, जो वाटर आ रहा है पूरा ये यहाँ से फ्लो होके यहाँ से जाता है सिंक में। So what is this provision? It lets you a continuous supply of water, right? क्योंकि यहाँ पे ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क है, जो हीटिंग मेंटल है, ये हीट करेंगे हम। हीट करने के वजह से यहाँ का जो पानी है वो गर्म हो जाएगा, राइट? पहला जब वाटर नॉर्मल कंडीशन में होता है, जब हीटिंग स्टार्ट होती है, यहाँ पे क्या होगा, कंडेंसेशन विल टेक प्लेस। तो रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस और कंडेंसेशन की वजह से हमारा जो वॉल्यूम है वो ज्यादा डिक्रीज नहीं होगा, तो हम कंडेंस भी कर रहे हैं। तो रिफ्लक्सिंग इज व्हाट? रिफ्लक्सिंग इज कंडेंसिंग द वाटर। सैंपल जो है उसको हम हीट करते हैं, वाटर जो है वो कंडेंस हो रहा है। तो द कंडेंसेशन जहाँ पे होता है दैट इज कॉल्ड एज अ रिफ्लक्स, राइट? और यहाँ पे अगर हमारा ये कंटिन्यूस सप्लाई वाटर, सपोज एक ही टाइम पे वाटर रहता, तो क्या होगा, ये हॉट हो जाता है, फिर इसके बाद ये हीट होने की वजह से ये गर्म हो जाता है, उसके साथ ही कनेक्टेड है वाटर कंडेंसर भी गर्म हो जाता है। तो इसके लिए मुझे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, ताकि यहाँ से जो गर्म पानी है वो चला जाएगा, दूसरा अच्छा नॉर्मल वाटर कम्स आउट। तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर टेक प्लेस एंड देयरफॉर द कंडेंसेशन continues for around 1.5 hours. So this process of heating is called as refluxing, where we do the condensation of the vapor. I hope it is clear what is to understand by refluxing. Yes, Aisha? Yes, ma'am. Okay, thank you. So this is how the COD, that is the chemical oxygen demand, is carried out. And what is the fast? जैसे मैंने कहा, fast is ferrous ammonium sulfate, right? This is a titrant. जैसे हमने water में EDTA यूज किया था, वैसे यहाँ पे जो है ferrous ammonium sulfate, that is called as short form में FAS, FAS, is used for titration because this FAS reacts with the dichromate. जो unused dichromate sample में रहेगा उसके साथ react कर जाता है and it gives you the unreacted dichromate. Fine. So this is how the titration is carried out. Now, with this, what I do get? Now, COD is calculated as follows. So COD, that is chemical oxygen demand, कैसे determine किया जाता है? तो COD, that is chemical oxygen demand, जब हम titration करते हैं तो हमें दो रीडिंग्स मिलते हैं, एक ब्लैंक का रीडिंग मिलता है और एक सैंपल का रीडिंग मिलता है, राइट? तो अगर मैं ब्लैंक को V1 कहती हूँ और सैंपल को V2 कहती हूँ, तो हमें जो अनरिएक्टेड, सॉरी जो रिएक्टेड है, सैंपल रिएक्ट हुआ है जो डाइक्रोमेट से, उसको हमको रीडिंग फाइंड आउट करना है। तो मेरा क्या होगा, V1 माइनस V2। इसको हम, V1 क्या है, हमारा ब्लैंक सैंपल है, V2 क्या है, सैंपल है। तो इवन यू कैन से एट ब्लैंक माइनस सैंपल। तो ब्लैंक माइनस सैंपल मुझे वो रीडिंग मिला है which has reacted dichromate, the dichromate which has reacted with the sample. Now this डाइक्रोमेट का जो मुझे रीडिंग मिला है, एफएस का रीडिंग मिला है, तो उसका एफएस से हमने टाइट्रेट किया है, उसका मुझे नॉर्मलिटी भी जानना जरूरी है कि मैंने कितना नॉर्मल का यूज किया है। एफएस 0.1 नॉर्मल क्या है, या 1 नॉर्मल क्या है, या 0.5 नॉर्मल का क्या है, तो वो मुझे कंसिडर करना होगा, दैट इज नॉर्मलिटी ऑफ एफएस, राइट? जब नॉर्मलिटी हम कंसिडर करेंगे, उसके बाद एक फैक्टर है दैट इज 8 into 1000। ये आपको फॉर्मूला डायरेक्टली लर्न करना है, हाउ इट इज कमिंग, इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर सिलेबस टू नो। तो into 8 into 1000 upon x is volume of sample taken for blank titration। हमने कितना सैंपल लिया है,
मतलब जब हमने सीओडी का टाइट्रेशन के लिए सैंपल कितना लिया था, 25 ml लिया था या 50 ml लिया था, दैट विल बी द सैंपल रीडिंग, टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंपल टेकन फॉर द टेस्ट। हमने कितना सैंपल में फाइंड आउट किया कि उसमें कितना सीओडी लेवल है। जब ये हम कैलकुलेट करते हैं उसके बाद हमें पता चलता है सीओडी कितना पीपीएम है, 1000 पीपीएम, 2000 पीपीएम, लैक्स पीपीएम, कितना पीपीएम है। उसके साथ उसके जब हम सीओडी वैल्यू मिल जाती है फिर उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, दैट द इंजीनियर्स लुक आउट, और द रिसर्च की टीम होती है वो फिर देखते हैं कि इसमें इतना ज्यादा लोड है तो उसमें उसका कैसा हम वाटर को जो है कम टॉक्सिक बना सकते हैं बिफोर इट gets discharged into the sea. So what is the significance of COD? COD measures the biological oxidizable and biological inert organic matter such as cellulose. COD values can be employed to estimate BOD values. Generally, जो हमें BOD values मिलता है, the COD is the BOD is half of the COD value, right? So we can come to know how much can be the BOD value. Now, determination of COD takes just 3 hours. Around 3 hours, we can come to know the result of this test of determining COD. Since in the COD test, both biological oxidizable and the biological inert matter are oxidized. The COD value for a sample is always higher than the BOD value. तो यहाँ पे जो है हमें chemically as well as biological inert organic matter का रीडिंग मिलता है जो ऑक्सीडाइज होता है, तो इसके लिए COD वैल्यू वो ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू द BOD वैल्यू। क्लियर? So this is the significance of the titration of the COD which is determined. Now I will show you the experimental how it is carried out. Just a second.